that there are three offices in the church, which are evangelists, pastors or teachers, and then deacons. और इस पाठ में हम लोगों ने तीन प्रकार के जो कलीसिया में पद रहते हैं उनके विषय में सीखा था, जिस प्रकार अगुआ है और प्रचारक हैं और शिक्षकों के विषय में। Even though the Holy Spirit of God has given these three names together in Ephesians chapter 4 verse 8 through, the brethren have a tendency to separate them between evangelists and then pastors and deacons. और हम लोगों ने इफिसियों से पढ़ा था कि इन तीन जो पद हैं कलीसिया में उनके बीच में विभिन्नताएं हैं। As we are reminded of in the learnings in the past days that for fivefold officers are given to the local church for its spiritual edification. The apostles and prophets are no more, and then comes the rest of the three, and they are the people in the congregation now administering it. और पिछले समय में हम लोगों ने 5 पदों के बारे में पढ़ा था जो कलीसियाओं में और कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए हुआ करते थे, जिस प्रकार हमने पढ़ा था भविष्यवक्ताओं के विषय में और प्रेरितों के विषय में और शिक्षकों के प्रचारक और अगुओं के विषय में। लेकिन आज के समय में तीन जो पद हैं वो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए कलीसिया का प्रबंधन करते हैं। It is not the evangelist, excluding evangelist, the elders and deacons administer the assembly, but it is together with the evangelist. They are carrying out the edifying ministry of the church. जो कलीसिया में तीन प्रकार के पद हैं, प्रचारक और अगुआ और शिक्षक, ये तीन अलग अलग नहीं है, लेकिन ये तीनों मिलके प्रचारक इवांजेलिस्ट के साथ में कलीसिया में सेवा करते हैं। Any teaching contrary to this truth actually grieves the Holy Spirit of God, because it is the risen Lord who have given these spiritual offices to the church. और ये जो हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इस सिद्धांत के विरोध में यदि कोई शिक्षा रहती है तो वो पवित्र आत्मा को दुख देती है वो शिक्षा, क्योंकि ये शिक्षा जो हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे जो पुनर्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। I, being a servant of the Lord, ministering with the brethren in India, I have joy to tell you that this is evangelists plus elders and deacons are in control of the church for the betterment of the congregation. हमारे भारत देश में ब्रदरन समाज में और ब्रदरन ग्रुप में मुझे एक बात कहने के लिए बहुत खुशी है कि हम सब जो हमारी कलीसियाओं में प्रचारक और अगुआ और उसके जो अध्यक्ष हैं वो मिलके सेवा करते हैं। First of all, the names given to these officers in the Bible. और क्योंकि सबसे पहली बात ये है जो हमारी कलीसियाओं में जिस प्रकार की व्यवस्था है वो व्यवस्था बाइबल में दी गई है। Last class we learned that there are three names given the Bible to implicate this one office of eldership. और हम लोगों ने पिछले समय में ही पढ़ा था कि ये जो अगुओं के विषय में बाइबल तीन प्रकार से बोलती है। That is presbyteros, that is elder. और प्रेस्बियूटरोस का मतलब है अगुआ। And then bishop is actually episcopos. और जो बिशप है एपिस्कोपोस उसको हिंदी में कहते हैं अध्यक्ष। And the third name is poimen, which means shepherd. और तो जो तीसरा है जो पोइमीन का है मतलब चरवाहा। All the three names are speaking about one single person with the three of their different offices. और इन जो तीन एक विषय के एक व्यक्ति के विषय में ये तीन शब्द एक ही जन को निर्देशित करते हैं। As a bishop of the church, that he oversight the congregation. और जो बिशप है वो कलीसिया के ऊपर अध्यक्षता रखता है। As an elder, that he leads the believer into spiritual maturity. और जो अगुआ है वो कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों को आत्मिकता की ओर बढ़ाने में मदद करता है। As an experienced shepherd, that he leads the sheep into green pastures and still waters. और जो आखिरी जो है वो प्रचारक जो भेड़ों को हरी हरी चराइयों में चराता है। These are not three different people, but one person with the three different offices. और ये केवल तीन लोग नहीं है, लेकिन एक ही जन तीन प्रकार से कलीसिया में सेवा करता है।
In the Bible, very often the Church of Jesus Christ is spoken about as the flock of God. और इस प्रकार से बाइबल में बहुत अच्छी रीति से बताया गया है। The flocks in the flock, the flocks, sheep in a flock need a good pasture. और जो बाइबल में बताया गया है कि जो चराई की भेड़ें हैं वो हरी हरी चराइयों में उनको चराना चाहिए। The sheep in the flock needed the good pasture, the proper care and the rest as well. और जो चराई की भेड़ें हैं उनकी अच्छे से देखभाल होना चाहिए, उन्हें हरा हरा घास मिलना चाहिए खाने के लिए। Similarly, in a church also the believers need proper feeding and care on the word of God. उसी प्रकार से हमारी कलीसियाओं के जो सदस्य हैं, विश्वासी लोग हैं, उनकी भी देखभाल अच्छी रीति से होना चाहिए। A church which is not given a proper feeding and caring on the word of God is a very poor church. यदि चर्च के विश्वासियों को अच्छे से उनकी देखरेख नहीं की जाएगी तो वो अच्छे से आत्मिकता में नहीं बढ़ सकते हैं। Probably you must have noticed some little children who are wandering around near the railway station and the other public places, who are indeed poor children who are suffering and yearning for food. और हम लोग रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों के करीब बस स्टैंड पर देख सकते हैं कि बच्चे लोग भीख मांग रहे हैं और उन्हें वो गरीब हैं, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। See, you make a look at them and sometimes you see that a skeleton body they have with a big head and a hanging stomach, just like our offering box. और कभी कभी हम लोग देखते हैं उनके शरीर को एकदम दुबला पतला सा, उनके जो पेट हैं वो एकदम लटके हुए हैं, पिचके हुए हैं, हमारे जो हम लोग दान लेते हैं उस थैले की तरह। Those people have no good nourishment for their growth. ऐसे लोगों का अच्छे से पालन पोषण नहीं मिला है उनको। They are very poor and wandering children. और वे लोग गरीब हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। I have often grieved in my spirit having seen such children are actually yearning for food picking up from the garbage. और ऐसे बच्चों को देखकर मुझे तरस आता है। The believers in a church should not be like those vagabonding children. और इस प्रकार से हमारी कलीसियाओं में हमारे विश्वासियों के बच्चे नहीं होना चाहिए। They need proper rest, feeding and care on the word of God. और उन्हें परमेश्वर के वचन से एक अच्छा सा पालन पोषण होना चाहिए उनका। This particular care and feeding is given to the sheep from the elders and pastors in the assembly. और जो हमारी कलीसिया के सदस्यों को जो पास्टर हैं, सेवक हैं और अध्यक्ष लोग हैं, उनकी बढ़ोतरी करने के लिए हैं। In 2 Corinthians chapter 1 verse 28, Apostle Paul he actually introduces himself or compares himself to a good shepherd. और पहला कुरिन्थियों 1:20 में पौलुस अपने आप को एक चरवाह की तरह बताते हैं। Paul had spoken about all churches in the days in his ministerial boundary. और पौलुस ने सभी चर्च की जो सीमा है उसके अंदर कार्य करने के लिए बताया है। As was appointed by the risen Lord Jesus Christ, that Peter is also speaking about himself as a co-elder in the pastoring of God's flock. और हम लोग कलीसिया में जैसे एक अगुवा के साथ में सह अगुवा बनकर सेवा कर सकते हैं ताकि कलीसिया की भेड़ों को अच्छे से चारा मिल सके। Few of the writings of the Apostle Paul is considered to be the shepherd epistles. और कुछ जो पौलुस के जो पत्र हैं वो उनको एक चरवाहिक पत्र बोला जाता है। Those epistles have given the strong instructions concerning how the believers are to be led in the spiritual field upon the word of God. उन पत्रों के द्वारा एक बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कलीसिया की भेड़ों की कैसे देखभाल करें और उन्हें कैसे आत्मिकता में बढ़ाएं। 1 and 2 Timothy as well as the epistle unto Titus, these three are called the shepherd epistles. और जो पहला दूसरा तीमुथियुस और तीतुस ये चरवाहिक पत्र कहलाते हैं। The message of these epistles have to do with the shepherding of the church.
और ये जो तीनों पत्र हैं वो कलीसिया में किस प्रकार से विश्वासियों को आगे बढ़ाना, आत्मिकता में बढ़ाना है, इस विषय में बताते हैं। So at the very outset, you and I need to understand that the shepherd is a person who leads the sheep into green pastures and give them proper care and rest in spiritual life. तो इसका मतलब जो चरवाहा व्यक्ति कौन है कलीसिया में, वो जो कलीसिया के सदस्यों को आत्मिकता में, अच्छा वचन में उन्हें आगे बढ़ाता है। If a person is not committed enough to give about such a ministry or such a word of ministry in the congregation, are not qualified to call an elder. और यदि कोई व्यक्ति इस कलीसिया के अंदर विश्वासियों को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, वचन नहीं दे पा रहा है, तो मैं उसे अगुवा नहीं कह सकता हूँ। Keep in mind, please, that these three names therefore implicates one person with the three of their different offices. ये तीन नामों को आप अपने ध्यान में रखें कि ये तीन शब्द एक ही व्यक्ति के अंदर हैं। Now we will step into the another title, the need of the elders in a church. अभी हम लोग एक दूसरे विषय में जाएंगे कि एक कलीसिया में अगुवा की जरूरत। Acts chapter 20, verse 17 and 28. और हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम 20 का 27 वचन। And First Peter chapter 5, verse 1 through 30. और पहला पत्रस 5, 1 से 13 वचन तक। According to these two passages, the elders in the congregations are appointed by the Lord Jesus Christ and the Spirit of God. और इन वचनों में हम पढ़ते हैं कि जो कलीसिया के अगुवे हैं वो प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के द्वारा कलीसिया में नियुक्त किए गए हैं। Elders in the churches are appointed by the Holy Spirit to oversight the assembly, and bishop and elders are one and same person in the Bible. और जो कलीसिया में अगुवे नियुक्त किए जाते हैं वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ताकि वो कलीसिया की उन्नति करें। If you notice an absence of an elder in a Christian church, don't be in a hurry to appoint somebody on your own wish and will, but you leave the time for the Holy Spirit of God to raise such men within the congregation. यदि आपकी कलीसिया में यदि कोई अगुवा नहीं है तो आप जल्दबाजी ना करें, आप प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे आपकी कलीसिया में अगुवा नियुक्त करने के लिए। What a seriously wrong practice what we notice in these days is that men are appointing bishops and elders in the congregation according to their whim and wishes. और आज के समय में ऐसा देखा जाता है कि लोग जल्दबाजी करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कलीसियाओं में अगुवे अध्यक्ष बना देते हैं। This actually violating the principles of God's word that says that the Holy Spirit of God is the person who appoints the elders in the congregation. और ये बाइबल के वचन के अनुसार विरोध में है, क्योंकि बाइबल का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि अगुवों की नियुक्ति, अध्यक्षों की नियुक्ति परमेश्वर और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा होता है। Don't jump into appointing an elder in the congregation. That will be more dangerous in the later days. यदि हम जो कलीसियाओं में यदि जल्दबाजी में एल्डर का चुनाव करके अपनी मर्जी से उसको नियुक्त कर देते हैं तो ये बहुत खतरनाक पूर्ण हो सकता है। Even if a person who shows certain abilities of an elder or a deacon, that the person has to be examined by the congregation thoroughly, and after much prayers and devotion, that we have to take a final decision to recognize them within the congregation. कलीसिया में जिस भी व्यक्ति के द्वारा या सदस्य के द्वारा किसी अगुवा का नियुक्त किया जाता है तो उसे कलीसिया के द्वारा उसका परीक्षण किया जाना चाहिए। The name elder has nothing to do with his physical age. और ये जो एल्डर नाम के साथ में एक भौतिक रीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। It implies the maturity of the person in office for spiritual maturity in matters. लेकिन उस व्यक्ति के अंदर आत्मिक बढ़ोतरी, परिपक्वता होना चाहिए। A 60-year-old elder brother may not have sometimes the spiritual maturity. A 25 or 27-year-old younger man who is really having the gift of eldership in the congregation. और जो 65 साल का व्यक्ति कोई सदस्य है कलीसिया में, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी के पास आत्मिकता की परिपक्वता होगी। वो 25 और 35 साल के व्यक्ति के अंदर भी परिपक्वता हो सकती है। The only condition which is mentioned in the Bible
to recognize an elder in a congregation is that he should not be a novice. That means a newly come believer. A newly come और believer. और इसमें बाइबल में बताया ऐसा नहीं बताया गया है कि कोई नया व्यक्ति आए और उसको अगुवा बना दिया जाए, लेकिन उसके अंदर वचन के प्रति आत्मिकता में परिपक्वता होना चाहिए। A person who recently born again should not be entertained to hold the office of elder, even if he has some kinds of spiritual abilities to do so. और जो व्यक्ति अभी अभी उसका उद्धार हुआ है तो जल्दी ही उसको कुछ ऐसे पदभार नहीं दे देना चाहिए। The reason for this prohibition is initiated because the Bible says that he will see himself proud over other people. He will feel like that I am so young, yet I am the elder of this congregation. ये जो जवान व्यक्ति है, जल्दी जो अभी नया विश्वास में आया है, उसको कलीसिया का कार्यभार इसलिए नहीं देना है, उसको अगुवा इसलिए नहीं बनाना है, नहीं तो वो अपने आप में घमंड करेगा कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में ही जल्दी आया और कलीसिया में आगे अगुवा का कार्य संभाल रहा हूँ, इसलिए उसको नहीं दिया जाना चाहिए। Such an attitude will bring punishment upon him, as was happened to Satan the Lucifer. और इस प्रकार का घमंड उसके ऊपर दंड को लाएगा, उसको खुद को दंड मिलेगा कि अपने आप पे घमंड करता है। All this restriction is given to us by the Holy Spirit of God that a newly born again or a new disciple should not be brought to the office of an eldership. इसीलिए कलीसिया में नए जो जिनका उद्धार हुआ है, नए व्यक्ति आए हैं, उनकी अगुवा बनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। But in some places and churches I have noticed that some youngsters are very eager to come forward. और ऐसे समय में देखा जाता है जो नए नए विश्वास में आते हैं तो वो प्रभु का कार्य करने के लिए, एल्डर बनने के लिए बहुत उत्तेजित रहते हैं। Even Apostle Paul, before appointing Timothy in the church at Ephesus as an elder come evangelist, that he left him when he met him in his first missionary journey and left with his home assembly to train up himself for a few years. और हमने देखते हैं पौलुस की पहली सुसमाचार प्रचार यात्रा में तिमोथी और जो जॉन मार्क ये लोग मिलते हैं और वहां पर पौलुस उनको सिखाते हैं। The Bible also tells us the primary intention or the ultimate intention for the appointing of an elder in the congregation. और बाइबल में हम लोग अगुवाओं की नियुक्ति के विषय में एक स्पष्ट सिद्धांत देख सकते हैं, स्पष्ट शिक्षा को देख सकते हैं। The ministry of the elders is intended for the edification of the entire congregation. और जो अगुवा की जो सेवा है कलीसिया में, वो कलीसिया की उन्नति के लिए उसको ठहराया जाता है। Elders are for the church and not the church for the elders. और जो एल्डर हैं वो चर्च के लिए है, चर्च एल्डर के लिए नहीं है। In some rich churches I have seen the elders pretend as if they are something. और कुछ कलीसियाओं में मैंने देखा है कि वो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि एल्डर ही जो अगुवा है वही सब कुछ है चर्च के लिए। The so-called elders are professing themselves to be someone or something. और ऐसा भी देखा गया है, एल्डर अपने आप को कलीसिया में कुछ दिखाते हैं कि वो कलीसिया के कुछ ना ऐसे कुछ अधिकारी हैं। I have seen in a few places some elders are professing like they are more than as a UN state secretary. I think his connection has gone, and if anybody else is having the connection facility, please get into. Yes, sir. Yes, sir. I'm there. Continue. It's okay. See, in some places I have noticed, not all, but a few people, they profess themselves to be greater or more than the UN State Secretary in their eldership. और कई जगहों में और बहुत सारे समयों में सर ने इस प्रकार से देखा है कि जो लोग हैं जो प्राचीनों के दावे को करते हैं, उनसे बड़ा और कई छोटे उन प्रकार के दावों को वो लोग करते हैं बहुत सारी जगहों में। An elder should be exemplary to the believers in the congregation. और जो उस झुंड में एक जो प्राचीन है वो विश्वासियों के लिए एक मार्गदर्शन होना चाहिए, एक उदाहरण के तौर पर होना चाहिए। He is not a dictator in a congregation, but a servant of the Lord for the sake of the sheep.
और वो एक भाषण देने वाला नहीं है उस झुंड के अंदर, लेकिन वो परमेश्वर की जो भेड़ें हैं उनके लिए वो सेवक है परमेश्वर के। In some churches, some elders are behaving as if they have the veto power, and sometimes they are, ruling the congregation beyond the restriction which the Spirit of God has given to them of their authority in the Bible. और कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्राचीन लोग हैं कलीसियाओं के अंदर जो परमेश्वर का झुंड होता है वो एक उसको कड़वाहट के साथ में उसका निरीक्षण करते हैं, या फिर कई इस प्रकार से जो परिस्थितियां और जो लिमिट दी जाती हैं उनसे बढ़कर के वो उस परमेश्वर के झुंड की मतलब वो अपना वो चलाते हैं हुक्म के तौर पर। All such practices are contrary to the word of God and gives the Holy Spirit of God. और इस प्रकार की सारी प्रक्रियाएं जो है परमेश्वर के विरोध में है और ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। They are appointed to their respective offices to become the humble servants of God, carry out the work of the Lord in edifying the saints in the congregation. और वो उसी के लिए नियुक्त किए गए हैं जो परमेश्वर ने उनको एक जो प्राचीन के ऑफिस में उनको नियुक्त किया है ताकि वो परमेश्वर के झुंड की रखवाली करें और उसका निरीक्षण करें। If an elder's ministry or services are not intended for the edification of the church, that they are no more qualified to continue in that office. अगर वो इस प्रकार से अपने प्राचीन की जो उनकी पदवी है उसको यदि वो कर करके नहीं चलते हैं या उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो वो इसके लिए मतलब उनका क्वालिफाइड नहीं हो सकते हैं कि वो एक प्राचीन बने। In case of which that he has to leave his office and then hand it over to some other people who are competent enough to carry out his task. और ऐसे समय में ऐसी परिस्थिति में उनको यह करना चाहिए कि जो उस कलीसिया के अंदर या फिर उस झुंड में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इस कार्य को भली भांति कर सके, उसको दे करके वो आगे बढ़ जाए या उससे निकल जाए। One of the sad situations that you and I notice in these present days is that many of the churches, it is not the Holy Spirit of God appointing the elders, but they are either becoming elders of themselves or somebody else is appointing them for some other special consideration. और आज के वर्तमान समय में मैंने और आपने इस बात को बहुत सारी कलीसियाओं में देखा है कि आज जो प्राचीन लोग जो कलीसियाओं में नियुक्त किए जाते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं और वचन के अनुसार नहीं, वरन वो लोगों की इच्छा और योजनाओं के अनुसार, ताकि वो बहुत से कुछ बातों को उनको देखते हुए उनको नियुक्त कर देते हैं कलीसियाओं में प्राचीन के पदवी पर। According to Acts chapter 20 verse 28, it is not meant, but it is neither the congregation, but it is the Holy Spirit of God who appoints these elders or to their office. और हम जानते हैं कि प्रेरितों के काम उसका 20 का 28 में हम पढ़ते हैं तो वहां पर कोई मनुष्य नहीं जो प्राचीनों को नियुक्त कर रहा है, लेकिन वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो उन प्राचीनों का नियुक्ति कर रहा है वहां पर। On the basis of this passage of scripture which I have already quoted, I tell you that if you find anyone who is not been appointed by the Holy Spirit of God, you should not accept him as an elder in the congregation, whatever it may be the consequences. और यदि आप इस प्रकार से जो वचन मैंने अभी बोला है 20 का 28 में प्रेरितों के काम उसके अनुसार, यदि कोई भी व्यक्ति को आप किसी कलीसियाओं में किसी प्राचीन को पाते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया हो, तो आप उसको एक प्राचीन के समान उसको ना समझें। Say some people are hanging on to this office just like the monkeys are hanging on the bough of a tree. और कुछ लोग इस प्रकार से होते हैं कि जो कलीसियाओं में कुछ प्रकार लोग ऐसे होते हैं उस बंदर के समान जो एक उस पर पेड़ पर एक धनुतीरवाण के समान टंगा हुआ है। Sometimes we see that some bandits are just holding with the apprehending on the boughs of the trees with their hands and then hanging down. और वो जानते हैं जो बंदर क्या काम करते हैं कि वो अपने हाथ से ऊपर की ब्रांच को डाली को पकड़ करके वो नीचे लटके रहते हैं। I am sorry to say that some elders are behaving like these bandits. और सर को खेद है इस बात को कहते हुए कि आज के जो कुछ प्राचीन लोग हैं इस प्रकार से वो व्यवहार करते हैं। They know that they are not qualified enough to carry on that task, yet they are hanging on this office as if that they are appointed by the Holy Spirit of God. और वो लोग कुछ प्राचीन ऐसे भी होते हैं कि वो इस कार्य को करते हैं और जिम्मेदारी ले लेते हैं जैसे कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त किए गए हों। The elders are to be the shepherds of the flocks of God according to Acts 20:28.
और प्रेरितों के काम 20 के अनुसार जो प्राचीन लोग हैं वो परमेश्वर का जो पवित्र झुंड है उसकी रखवाली के लिए उसके चरवाहे बने। Every sheep need control, leading, and oversight at all times. और हर एक जो भेड़ हों उनके लिए उनकी सुरक्षा और उनको अच्छी प्रकार से हरी चराई के लिए जरूरत है। Therefore, all such offices must be initiated and implemented from heaven, not from the earth. और जो सारी ऑफिस हैं वो स्वर्ग के द्वारा ही उनको लगाया जाए, वरन ना कि पृथ्वी की हो। It is God who decides whether you should be an elder or not. और ये तो वही परमेश्वर है जो ऐसा निर्णय लेते हैं कि आप एक प्राचीन हो या ना हो। In some churches, the elders are thinking that their primary office is to read the notices of the weekly meetings in the assembly, as well as signing on the letterhead, and then doing some sort of such ministries, and they have nothing to do with the word of ministry. और कुछ प्राचीन लोग ऐसा भी कलीसियाओं में अपना भूमिका को निभाते हैं कि वो उनको बहुत ही अच्छा लगता है कि जब वो कलीसिया में खड़े होकर के जो पूरे हफ्ते का विवरण को पढ़ते हैं, सेवकाई के बारे में लेटर को पढ़ते हैं। और कुछ एल्डर ऐसे होते हैं जो उस पद पर लेटर पर अपना साइन अर्थात अपना हस्ताक्षर करने के लिए वो अच्छा लगता है, लेकिन उनको कोई संबंध नहीं है उस कलीसिया के अंदर उस परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए। None of these things are the duties of our elder, but such things have to be carried out by the deacons or the other church secretaries. और इस प्रकार की जो कार्य हैं वो एक प्राचीन को करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्य जो है ना कलीसिया के जो अध्यक्ष लोग हैं वो इस कार्य को करना चाहिए। The primary responsibility of a prachin is to lead the congregation to the experience of edification. और जो एक प्राचीन की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि वो जो झुंड है उसको आत्मिक रास्ते से उनको बढ़ाएं। In view of this, that the following things I am going to share with you, the various qualifications and responsibilities of the elders in a congregation. और अभी सर हमारे बीच में जो प्राचीनों की जो प्रमुखताएं हैं, विशेषताएं हैं, उनको अभी हमारे बीच में शेयर करने के लिए जा रहे हैं। I have classified the qualification of the elders in the congregation who are appointed by the Holy Spirit of God into 4 different categories. और सर ने उन जो प्राचीन की जो विशेषताएं हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया है, जो उनकी जिम्मेदारियों को। Number 1, their character and conduct in the church. सबसे पहली बात है उनका स्वभाव और उनका व्यवहार कलीसिया के अंदर। Secondly, their doctrinal integrity. और दूसरा है सैद्धांतिक ईमानदारी और सच्चाई। Thirdly, their experiential knowledge in the field of fellowship. और उनके जो सभाओं के उनका अनुभव। And fourth one, that is their public testimony. और जो चौथी बात है वो सामाजिक गवाही। So let us go on each one first. और चलिए हम लोग एक जिम्मेदारी की विशेषता को हम लोग देखते हैं। We are slowly going to learn now the qualification of the elders in a church. और आइए हम जो प्राचीनों की जो विशेषताएं हैं उनको सीखने के लिए जा रहे हैं। What I am going to explain here are the qualifications of an elder, and if an elder do not have this qualification, he is no more an elder. और सर अभी हमारे बीच में व्याख्या करने के लिए जा रहे हैं वो उस प्राचीन की विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं के अनुसार यदि किसी भी प्राचीन के अंदर कोई विशेषता ना हो तो उनमें से तो उसको एक प्राचीन नहीं समझा जाए। Those who hear me and acting like an elders in their career who do not have the following characteristics or qualifications should not be angry at me, because I am standing on the basis of the word of God and sharing it with you. और आज यदि जो कोई भी अगुआ जो कोई भी प्राचीन अपने प्राचीन के पद को वो पकड़े हुए है और जो अभी बताने वाले हैं जो उसके स्वभाव यदि उनमें से उसके अंदर नहीं है तो वो प्राचीन सर पर गुस्सा ना हो, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के आधार पर इन विशेषताओं को बताने वाले हैं। Many elders from distance who do not have these scriptural qualifications, who happen to listen me this morning, they will feel
at me just like a ginger taken bandar. और आज जो जो विशेषता एक प्राचीन के अंदर ना हो, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर जो गुण होना चाहिए वो नहीं है, तो जो प्राचीन आज के ऊपर उसी के समान क्रोधित होंगे, जैसे कि बंदर के हाथ में जब एक अदरक आ जाता है तो वो चिंचड़ा जाता है। You know what will happen if bandar takes the ginger? आप सभी लोग जानते हैं कि जब एक बंदर जब अदरक को खाते हैं तो The bandar will be quite angry at. और वो बंदर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाएगा, चिड़चिड़ा जाएगा। While I was doing my lower primary studies in the nearby my school, there was a house in which a monkey was rearing there. और सर जब अपने बचपन की पढ़ाई में जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो उस टाइम पर एक बंदर उधर घूम रहा था। So interval time we will take some footsteps and go to see visit this monkey also very often. और सर बार बार मतलब उस बंदर को देखने के लिए जाते थे जब उनका इंटरवल टाइम हो जाता था, और वो कुछ खाना लेकर के जाते थे बंदर को देखने। Sometimes we used to carry some nuts or some groundnuts or something like that and will throw to the monkey, and monkey will be very happy to take it. और कई बार ऐसा करते थे कि सर लोग कुछ मूंगफली या फली वगैरह लेकर के जाते थे, उस बंदर के सामने फेंक देते थे और बंदर बहुत खुश होकर के उनको उठाकर खा लेता था। See, one day a colleague of mine, he had a small packet in his right hand. Actually, it was, he covered a piece of ginger in the packet and threw it into the monkey, and monkey hurriedly got it and put in his mouth. But after that, the monkey was very angry at this man. और सर का एक दोस्त था उसी समय में, वो क्या किया, एक पेपर के कागज के टुकड़े में एक अदरक के टुकड़े को उसने डाप करके बंदर के सामने फेंक दिया, और बंदर बड़े ही आनंद के साथ उछल के उसको अपने मुंह में रख लिया, और जैसे ही उसने चबाया तो बंदर बहुत ही ज्यादा क्रोधित और गुस्सा हो गया उस व्यक्ति पर। In the same way that those who do not have the heavenly call and appointment for the eldership office, but at the same time they are acting like elders, they may feel the same attitude toward me or anybody else who speak the truth from the word of God. और उसी तरह से आज जो व्यक्ति जो प्राचीन है यदि उनके पास यदि स्वर्गीय बुलाहट और स्वर्गीय योग्यता और वचन के अनुसार उनकी योग्यता यदि प्राचीनों के अंदर नहीं है, तो वो भी उसी प्रकार से क्रोधित होंगे जिस प्रकार से बंदर उस व्यक्ति पर हुआ था, कि या कोई और भी व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के अनुसार उनसे कहेगा तो वो भी उसी प्रकार से व्यवहार या गुस्सा करेंगे। Concerning the character and conduct of an elder, 3 things are written in 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. और जो अगुआ के और प्राचीन के स्वभाव और उसके व्यवहार के बारे में 3 बातों को लिखा हुआ है उसका 2 तिमोथी चैप्टर 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. और 1 तिमोथी 3 का 1 से लेकर के And Titus chapter 1 verse 6 to 9. और तीतुस की पत्री 1 का 6 से 9 तक। An elder is not addicted to wine is the first character it is spoken there. और यह ऐसा लिखा है कि वो अध्यक्ष हो तो वो है एक ही पत्नी का पति हो। The elder should not be addicted to wine. और एक जो अध्यक्ष है या जो अगुआ प्राचीन है वो शराबी का नशेड़ी ना हो। Somebody told me very recently that the Bible says an elder should not be addicted, which means the believers can be addicted. Is it so? और एक बार सर से किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से एक प्रश्न को पूछा कि चलो जो प्राचीन है या अध्यक्ष है उसको एक नशेड़ी नहीं होना है, लेकिन विश्वासी तो नशेड़ी हो सकते हैं। No, the Bible prohibits the believers to take any such intoxication. और बाइबल इसके बारे में क्लियर साफ तरीके तौर से बताती है कि कोई भी विश्वासी इस प्रकार के नशे में को ना ले। Neither the believer nor the elder or the deacon should entertain the wine and its addiction. और ना तो विश्वासी और ना ही डीकन ना ही सेवक और ना ही प्राचीन अध्यक्ष इस किसी भी प्रकार के नशे को करें। But I am sorry to share with you, somebody has recently told me there are even some elders in some places who enjoy the taking of wines. और अभी सर को कुछ ही समय पहले सर को किसी ने बताया कि आजकल के जो प्राचीन और अध्यक्ष लोग हैं कलीसियाओं में, वो भी आज इस शराब के आनंद उठाते हैं, शराबों को पीते हैं। If anyone who leads the Church of Jesus Christ and the flock of God
at the same time he is intoxicated, let him be sober-minded to listen what I am sharing here, that the Bible says that elder should not be addicted to wine. और जो जो व्यक्ति परमेश्वर के झुंड की रखवाली करते, परमेश्वर की झुंड भेड़ों की रखवाली करते हैं, उन अध्यक्षों को, उन प्राचीनों को चाहिए कि वो इस प्रकार की नशे से दूर रहे। और जो व्यक्ति अभी सुन रहे हैं मुझे, यदि कोई ऐसा है तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि कोई भी प्राचीन अध्यक्ष हो, वो नशेड़ी ना हो, वरन वो नशे रहित हो, नशा से दूर हो। An elder is not to be addicted to wine is the first character and conduct spoken about him. और सबसे पहला जो स्वभाव उसका और उसका प्राचीन का कार्य है वो है वो नशे से दूर रहे, शराब से दूर रहे। And the second requirement as for his character and conduct is seen in the same passage, that he should not be a pugnacious, that means striving, making strife in the congregation or strife in family. और दूसरा जो कार्य, दूसरा जो योग्यता उस प्राचीन की ये नहीं होना चाहिए कि वो झुंड के बीच में झगड़े को, रगड़े को या दंगे को उत्पन्न करने वाला हो। An elder should not be a pugnacious person. Sorry sir, I didn't read. The pugnacious means the one who makes strife. Yeah. Strife. और जो बिशप या अध्यक्ष है या प्राचीन है, वो झुंड के बीच में वो झगड़ों को या दंगों को नहीं करे या फूट ना डाले। Probably you must have seen some haughty elders. और आपने कई बार ऐसा देखा होगा, बहुत ही क्रोधित जो प्राचीन होते हैं। And if you ask them something, they will be very haughty in response. और यदि आप उनसे कुछ पूछेंगे तो उसके प्रति उत्तर में वो बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे। Strife, the people with the character and conduct of strife. और उनका जो लोग फिर उनके बीच में क्या वो दंगे खड़े हो जाएंगे या फिर वो क्रोधित हो जाएंगे और झगड़े रगड़े शुरू हो जाएंगे। As for his character and conduct, that he should not be addicted to wine, the first, and secondly he should not be striving. और सबसे पहला जो परमेश्वर के वचन के आधार पर एक अध्यक्ष का स्वभाव वो किसी नशेड़ी ना हो, नशेबाज ना हो। दूसरा वो झगड़े रगड़े कराने वाला भी ना हो। And the third requirement says that he should not have the love for money. और जो तीसरा कार्य है वो पैसे के लिए धन की चाहत ना हो उसके अंदर। Paul says to Timothy that the love for money is the root of all evil. और पौलुस तिमोथी उसको बताता है कि जो धन की संपत्ति का जो सारी बुराई का जड़ जो है धन है, संपत्ति है। An elder should not be a person who loves money and one who lives for money or moving after money. और एक वचन कहता है कि एक जो प्राचीन अध्यक्ष है वो उसके जीवन में पैसों के लिए ही ना जिए, वो वरन पैसों के लिए ही काम ना करे और पैसे की लालच उसके मन में ना हो। The other day I heard somebody was saying that Isa Nabi I know and Musa Nabi I know, but so far I could not understand this Paisa Nabi, that means money Nabi. और सर को एक व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा कि मैं मूसा नबी को तो मैं जानता हूँ, ईशा नबी को तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये पैसा नबी कौन है, ये पैसे से प्रेम रखने वाला कौन है, बोले इसको नहीं जानता मैं। Everybody is after Paisa Nabi in these days. और आज सभी बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग पैसा नबी को ज्यादा खोजते हैं। Bible says an elder should not be a Paisa Nabi. लेकिन बाइबल बताते हैं कि जो अध्यक्ष है, प्राचीन है, वो एक पैसा नबी ना हो। He should not run after money and greedy. और वो लालची होकर के पैसे के पीछे ना दौड़े। So 3 qualifications in regards to his character and conduct. I said that he should not be addicted to wine, he should not be striving, and he should not be a person for love for money. और जैसे कि परमेश्वर के वचन के आधार पर 3 बातें मैंने बताया। पहला कि वो नशेड़ी ना हो, शराब से दूर रहो, शराब रहित हो, और दूसरा वो झगड़े रगड़े कराने वाला ना हो, और तीसरा वो पैसे के पीछे जाने वाला, पैसे के प्रति रुपए का प्रेम रखने वाला ना हो। Now the second qualification. और जो दूसरा जिसका विशेषता है, that has to do with his doctrinal integrity. और वो उसकी सैद्धांतिक शिक्षा के संबंध में रखता है। An elder should be competent enough to present the true doctrines and teachings of the word of God. और वो सुशील, संयम, सभ्य और अतिथि सत्कार को सिखाने में निपुण हो।
I am narrating all this classification from 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. और जो सारी बातें अभी जो सर हमारे बीच में रख रहे हैं वो पहला तिमोथेयुस पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 7 से इन बातों को बता रहे हैं। An elder must be thorough in the doctrinal stand. और वो सैद्धांतिक शिक्षाओं में वो निपुण होना चाहिए। Suppose you are an elder and somebody is asking you whether the church will pass through the tribulation or not. You don't say that still I am studying on that subject. I am not now able to answer. But rightly you say that church will not go through the tribulation. और आप इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आप जो महाक्लेश का समय है उस समय में क्या कलीसिया उससे होकर के जाएगी, तो आप उनको ऐसा ना कहें कि मैं अभी भी उस विषय पर अध्ययन कर रहा हूं या अध्ययन जारी है, वरन आप डायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं, सीधे तौर पर आप कहें कि नहीं, कलीसिया उस महासंकट के या महाक्लेश के समय से होकर के नहीं गुजरेगी। You should be giving either a positive answer or a negative answer, that there is no neutrality in spirituality as for the doctrinal integrity is concerned. और जो सैद्धांतिक जो सच्चाई के को यदि देखा जाए तो आप या तो नकारात्मक जवाब दे सकते हैं या सकारात्मक जवाब दे सकते हैं। If somebody is asking you, are you married or not, there are only two answers, either you are married, yes or no. और यदि आपसे एक प्रश्न यदि आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि क्या आपका शादी हो गया, तो इधर में आपके पास केवल दो ही उत्तर होंगे, पहला हाँ और दूसरा नहीं। So your answer should be yes, yes and no, no. और आपका जो इसका तात्पर्य यही है कि आपका जो उत्तर जवाब यही होना चाहिए, हाँ का हाँ होना चाहिए और ना का ना होना चाहिए। Every elders who are appointed by the Holy Spirit of God are competent enough to teach the congregation the true and the right doctrines from the Word of God. और जो प्राचीन है वो परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो इसके लिए काफी होना चाहिए कि परमेश्वर के सही और सीधा और सत्य वचन को वो कलीसिया को अर्थात उसके परमेश्वर के झंड को सिखाएं। Not only he would be teaching the right doctrines, and he must be able to exhort the saints and refute false teachings and heresies which would ruin the church of Jesus Christ. केवल इतना ही नहीं कि वो शिक्षा दें, वरन वो उन लोगों को जो परमेश्वर में उनको बड़ा है उसके विरोध में उनको ताड़ना दें और उनको चिताएं कि और परमेश्वर की शिक्षा से उनको सुसज्जित करें। If an elder is very much accustomed to the Word of God, that the church will be growing spiritually and growing up spiritually and will have the proper edification. और यदि एक याजक या अध्यक्ष या फिर एक प्राचीन यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि वचन में निपुण होगा तो कलीसिया जो है आत्मिक तौर पर वो उन्नति करती हुई आगे बढ़ती चली जाएगी। But if a person claims to be an elder of the congregation, but yet he is not unable to exhort the congregation, or neither he is able to refute the false doctrines and teachings of the that may intrude in their church, that such person are not been really appointed by the Holy Spirit of God. इसलिए यदि कोई भी प्राचीन अगुआ यदि जो सत्य परमेश्वर के वचन में निपुण ना हो और परमेश्वर के सत्य वचन को यदि प्रचारित ना कर सके या शिक्षा ना दे सके और या जो गलत शिक्षाएं हैं उनको वो नकार ना सके या उनके प्रति वो ताड़ना ना दे सके, तो इस प्रकार से वो कलीसिया की उन्नति कभी नहीं होगी और वो कलीसिया कभी नहीं बढ़ेगी और वो एल्डर प्राचीन नहीं होगा। As far as the doctrinal integrity is concerned, that he should be capable to teach the doctrines, sound doctrines, exhort the congregation, and refute the false doctrines and heresies. और इसलिए एक प्राचीन का एक जो विशेषता यही होना चाहिए कि वो पहले तो निपुण हो, दूसरा वो दूसरों को सिखाने के लिए विश्वासियों को सिखाने के लिए वो तत्पर हो, और तीसरा जो गलत शिक्षा है उसको वो उनको वो दूर नकार दे या उनको दूर करे और उनको वो जो विश्वासी आगे बढ़ते हैं उनको आगे बढ़ाए, प्रशंसा करे। The third qualification Paul has noticed here is that is his experiential knowledge. और जो तीसरी जो विशेषता प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर दिखाई गई है, He must not be a new disciple, the Bible says. और जो तीसरी बात है बाइबल कहती है कि वो एक नया शिष्य ना हो, नया चेला ना हो। The new disciple may lack the experiential knowledge in leading the congregation to the green pastures. और एक नया जो शिष्य होगा या नया प्रभु का विश्वासी होगा तो वो उसके पास जो अनुभव का जो अनुभव है उसकी कमी होगी। A person who has come forward to hold the office of an eldership
must be learning the word of God and spending his time in prayer and devotion and in full surrender his life to the Lord Jesus Christ. Otherwise, he will not be experientially a disciplined person to take up that office. और यदि कोई भी जो प्राचीन है, अगुआ है, यदि उसको चाहिए कि वो प्रार्थना में परमेश्वर से समय बिताए, परमेश्वर के वचन में वो मनन करने में समय बिताए और उसका पूर्ण जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित हो और वो इस प्रकार से अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के लिए समर्पण करते हुए आगे को कलीसिया को और परमेश्वर की झुंड की रखवाली करते हुए आगे बढ़ता चला जाए। 3 important areas as far as qualification we have so far dealt with. और हमने अभी तक 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में अभी हमने सीखा है, देखा है। As for his character and conduct, he should not be addicted to wine, and he should not be striving, and he should not be a person to have the love for money. और जो 3 बातें हमने अभी देखी हैं, सबसे पहला कि एक जो अध्यक्ष है या एक जो प्राचीन है वो नशेड़ी ना हो, दूसरा वो झगड़ालू ना हो और तीसरा वो पैसे से प्रेम रखने वाला या रुपए का लोभ रखने वाला ना हो। As for his doctrinal integrity, that he must be able to exhort, refute, and then teach the true doctrines of the word of God. और परमेश्वर के वचन की सत्यता के अनुसार वो परमेश्वर के लोगों को वो पहले तो निपुण करे और सिखाए और जो गलत शिक्षा है उसका तिरस्कार करे और वो उनको प्रोत्साहन करे आगे बढ़ाने के लिए। And as for his spiritual knowledge, Paul also says that he must not be a new disciple. और पौलुस इस बात को भी बताते हैं यद्यपि कि वो एक जो प्राचीन है वो एक नया विश्वासी ना हो। Now comes to the fourth area in this respect. और इसी में चौथा जो एरिया और समय भी आता है, चौथा जगह चौथी बात that has to do with this testimony of life. और जो उसके वो उसके जीवन की गवाही से संबंधित है। Say, as for the elder is concerned, he should have a good reputation both in the public and private life. और जो प्राचीन का जीवन है वो चाहे वो रहस्यमय जीवन हो या फिर उसका जो सामाजिक जीवन हो उसमें वो बहुत ही सम्माननीय हो। So if an elder is not a person who is self-disciplined, having a good testimony both in his private and public life, he is not qualified to take up that office. और यदि एक जो प्राचीन है उसका जीवन में यदि वो रहस्यमय जीवन में और सामाजिक जीवन में वो अपने आप को नियंत्रण करने वाला ना हो या उसकी गवाही अच्छी ना हो तो वो प्राचीन की पदवी लेने के योग्य नहीं है। So there was a church priest in a place. और इधर में एक जगह में एक चर्च का एक प्रीस्ट अर्थात एक याजक था। Two persons in that church had a dispute between them. और 2 व्यक्तियों ने उससे क्या बोलते हैं फुट डाली उसके बीच में। So both the person, one Matthias and one Cherian, both of them they came to visit the priest and lodge their complaint to settle this matter. और एक मत्थाई एक चरियन था, दोनों व्यक्ति उस प्रीस्ट अर्थात उस याजक के पास जाते हैं इस शिकायत को लेकर के। So Matthias, the older man, came first to the priest and lodged his complaint. और सबसे पहला जो मत्थाई था वो थोड़ा सा बुजुर्ग व्यक्ति था, वो सबसे पहले उस याजक के पास जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराता है। The priest heard him all his grievances and then told him that we will make a settlement. और प्रीस्ट जो याजक था उसने उसकी सारी समस्याओं को और दुख दर्द भरी घटनाओं को सुन करके उससे कहा कि इसका हम समाधान करेंगे। So he comforted him and sent him back. और उसने उसको सांत्वना दी और उसको वापस भेज दिया। And as he went out, the other man came, Cherian came. और जैसे ही वो गया उसके बाद चरियन अंदर आया। And Cherian also shared with the priest his grievances. और उस जो चरियन था उसने भी प्रीस्ट को अपना दुखड़ा सुनाया और उसको भी सारी परिस्थितियां बातें बताई। So having heard him, he said that what you said is true. और जैसे ही उसने इस चरियन को सुना, बोलता है कि जो कुछ आपने कहा वो सत्य है। The same response the priest had with the first man also. और उसी प्रकार का जवाब जो पहले व्यक्ति के साथ उस प्रीस्ट का था।
after talking to the priest, they asked the missus of the priest about his character. और जो पृष्ठ था उसने उनकी जो श्रीमती थी उनसे उनका स्वभाव के बारे में पूछा. And they asked the priest's wife about his behaviorism within the family. और जो उसका जो श्रीमती थी उनसे जब उन्होंने पूछा तो उसका जो व्यवहार परिवार में किस प्रकार से था. Then the Srimati retorted them saying that in the house he is a little Satan. That means a Kundichathan. और उनकी जो श्रीमती थी उनके बारे में उनको बोलती है कि वो घर में एक छोटा शैतान है. Some elders are in the private life a little chota Satan, and in the public life they are saints and angels. और इसी प्रकार से कुछ प्राचीन लोग इसी प्रकार से होते हैं कि वो अपने रहस्यमय जीवन में पारिवारिक जीवन में एक छोटा शैतान होते हैं, लेकिन सामाजिक जीवन में या सामूहिक में कलीसिया में वो एक स्वर्गदूतों के समान या संतों के समान बनते हैं. I'm not sure whether you believe me or not, but sometime back somebody told me that there are elders who beat up their wives. और इस प्रकार से सर का कहना यह है कि सर से किसी व्यक्ति ने कहा है, आप विश्वास नहीं करोगे कि कुछ कलीसियाओं में ऐसे प्राचीन भी हैं जो अपनी पत्नियों को मारते हैं. There are some elders who are beating up their children, wives, and making a lot of strifes and rivalries in their private life in homes. और कुछ प्राचीन लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने परिवार में झगड़ा रगड़ा करते हैं, अपने बच्चों को, पत्नी को, सबको पिटाई करके उनको झगड़ा करते हैं और कोलाहल मचाते हैं परिवारों में. Once in a charismatic congregation, a pastor was, preaching in a spirit-filled way to the congregation. और एक ऐसा समय था कि एक पास्टर जो आत्मा से भर करके वो यह प्रचार कर रहा था. And his presentation was on a caption, how a believer should behave himself in the Christian home. और उसका जो प्रचार का जो मुख्य संदेश का जो शीर्षक था वो यही था कि एक विश्वासी या एक प्रचार कैसे वो अपने जीवन में नियंत्रण रखे. While the pastor was continuing his fiery sermon on the dais, और जब वो अपने इस सरमन को, जब अपने वो संदेश को वो आगे बढ़ाते लेते जा रहा था, his wife walked up from the congregation, went out into the parsonage. और वो जो उसका पत्नी था वो उस झुंड के बीच में से वो निकल करके बाहर निकल के चली गई. Within a few minutes she carried his mattresses, his mat, his toothbrush, and his 1 or 2 vessels and everything she brought in the congregation. और उसके बाद में उसकी जो पत्नी थी वो अपने चटाई को, दरी को और कपड़ों को और बर्तनों को लेकर के वो उसके सामने आई. Every members of the congregation were gazing at this lady, what she was doing. और जो सारी जो पूरी झुंड थी और वहां की सभा के सारे सदस्य लोग उस स्त्री के ऊपर नजरें गड़ाए हुए देख रहे थे कि ये स्त्री. Some sisters whispered to her ear and asked her, why you are doing all this and bringing all these mattresses, mat and toothbrush and everything to the church hall, and should not it be remained with the parsonage, they asked. और इस प्रकार से कुछ स्त्रियों ने एक दूसरे कान में उस स्त्री को जाकर के कहा कि कैसे ये स्त्री चर्च के अंदर अपने इस चटाई को या उसके सारे सामान को लेकर के, टूथब्रश को लेकर के इस चर्च में लेकर के आ रही है. The Mrs. Pastor told the sisters that, while I was listening the presentation of my husband, the Spirit of God gave me the understanding that it is better for him to stay within the church than coming and staying with me in the parsonage. और इस प्रकार से उसकी जो पास्टर की पत्नी थी उसने उनको जवाब दिया कि मैंने ऐसा इसलिए किया, मुझे जब वो प्रचार कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि इनको चर्च में रहना ही अति उत्तम है घर में रहने से. Some elders and pastors and evangelists are so godly, calm and quiet in the congregation, but they are very violent in the parsonage. और इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यही है कि कुछ एल्डर और जो कुछ प्राचीन और जो कुछ पास्टर ऐसे होते हैं जो कलीसियाओं में या झुंड के बीच में, समूह के बीच में वो बहुत ही आत्मिक बनते हैं, लेकिन उनके जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें वो बहुत ही छोटा शैतान बन जाते हैं. Apostle Paul knew this very much about this such characteristics of people by the help of the Spirit of God. So he instructed them that an elder should have a good reputation both in the public and in the private.
इसीलिए पौलुस इन सारी बातों को भली भांति जानते थे उस समय के जो प्राचीन लोगों के जीवन के बारे में। इसीलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को, सहायता को पाकर के पौलुस इन बातों को बताते हैं कि एक प्राचीन को एक सम्माननीय माननीय व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो उसका व्यक्तिगत या पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो। If you are not an exemplary Christian within your home environment, you cannot be an exemplary elder or a bishop or an evangelist in the congregation. यदि आप अपने पेड़ के लिए एक रोल मॉडल नहीं हैं, यदि आप उनके लिए उदाहरण नहीं हैं अपने पारिवारिक जीवन में या फिर अपने सामाजिक जीवन में, तो आप कभी भी कलीसिया के अंदर विश्वासियों के लिए एक इवांजलिस्ट हो, चाहे पास्टर हो, चाहे एक प्राचीन हो, आप वो एक उदाहरण नहीं बन सकते विश्वासियों के लिए। If your private life is not pleasing to God and it's not maintaining the holiness of God's standard, then your public life will be a failure. और यदि आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, यदि परमेश्वर के वचनानुसार यदि आप उसको मेंटेन या नहीं करते हैं, तो आप जो सामाजिक जीवन है, आप उसमें सामूहिक जीवन में आप फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। This morning our today's study with these principles. और इन सिद्धांतों के अनुसार आइए आज हम इन बातों के आज के अध्ययन को समाप्त करेंगे। We have been studying the qualification of elders in a church. और आज हम लोग एक प्राचीन का या अध्यक्ष की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं। आज his character and conduct that he should not be addicted to wine. और उसका स्वभाव और उसका व्यवहार कलीसिया के अंदर वो एक नशेड़ी या नशेबाज या शराबी ना हो। And he should not be a man of rivalry. और वो झगड़ालू ना हो। And he should not be a person who love for money. और वो रुपए का लोभ रखने वाला भी ना हो। And as to his doctrinal integrity, he must be a person who is competent enough to teach, exhort, and to refute false teachers. और परमेश्वर के वचनानुसार वो परमेश्वर के वचन में निपुण हो और अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में भी निपुण हो वो। And as to his spiritual knowledge, the Bible says that he must not be a new disciple. और उसके अनुभवी ज्ञान के लिए वो एक नया विश्वासी ना हो। And finally, as to his testimony, he should be having a good reputation both in public and private life. और उसका गवाही के बारे में वो दोनों जगहों में, उसका व्यक्तिगत जीवन में और उसका सामाजिक जीवन में, सामूहिक जीवन में वो एक सम्माननीय व्यक्ति हो। Anyone who claims to be an elder must have these kinds of qualification in regards to their personal life and ministries. और कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को एक प्राचीन अगुआ के रूप में माना जाता है, कलीसिया में नियुक्त किया जाता है, तो वो उसके अंदर ये सारी विशेषताएं होना अनिवार्य हैं। If they do not have such a qualification, they are no more qualified to become an elder in a church. और यदि उनके व्यक्ति के जीवन में यदि ये सारी विशेषताएं नहीं है, तो वो एल्डर का या अध्यक्ष का पदवी लेने के लिए उपयुक्त नहीं है। With this, I close down today's class here, and if you have any questions, you can ask me 2-3 minutes. Otherwise, we'll close in prayer. और मैं इन्हीं बातों के साथ में समाप्त करता हूँ आज की अध्ययन को। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं 2-3 मिनट में, नहीं तो हम लोग समाप्त करेंगे। Sir, I have one question. Yes. Suppose if the new church is being formed, then if there is suddenly, how we can appoint the elders and the brachin in the assemblies? Okay, when a new church is formed, no new church is immediately, having an elder. In a due course, the Holy Spirit of God will show the congregation with a few people who have been raised up within the congregation by God himself, so with the abilities of eldership. And when the churches recognize those people having such qualities, the church have to accept them as elders. But till that time, the church should be subjected to God's governing. Okay, sir.
मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि यदि कहीं पर नई कलीसियाओं का उद्घाटन होता है या चर्च कलीसिया स्थापना होती है, तो उस समय में हम लोग प्राचीनों को कैसे नियुक्त कर सकते हैं? सर का जवाब ये था कि उस समय तक पहले हमको देखना चाहिए कि परमेश्वर के जो वचन के अनुसार या परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार वो प्राचीन यदि उनके अंदर ये गुण दिखाई देते हैं, तो हम उनको प्राचीन के पदवी पर नियुक्त कर सकते हैं, जब तक हम परमेश्वर के निर्देश पर, परमेश्वर के वचन पर हम लोग आश्रित रहें, आधारित रहें। Did you understand what I explained? Did you understand Yes. what I explained? क्या आप लोग समझ गए हैं जो सर ने अभी बताया, समझाया? जी सर। Okay. जगबीर भाई कंटिन्यू। थैंक यू। Thank you. जी जी। Thank you so much.